important things that God wants us to learn is to give thanks. और जैसे हम साथ में आते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। This is one phrase, this sentence is always mentioned the most times in the Bible. और ये जो बातें हैं बाइबल पवित्र शास्त्र में बहुत बार बार दोहराया गया है। We have to give thanks to God. और हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। So in the Old Testament as well as much more in the New Testament. और जैसे जिस प्रकार से हम पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी बताया गया है। The Psalms, when you read, always it says to give thanks to God for He is good. भजन संहिता में बताता है कि परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है। And God is good to every human being in this world. और परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य के प्रति भला है, अनुग्रहकारी है। But many people do not acknowledge that. लेकिन बहुत सारे मनुष्य जो है उसे अपनाते नहीं हैं। All the problems in their life, they blame God and they are very unhappy. और पूरे जीवन में परमेश्वर को दोष लगाते रहते हैं और पूरा जीवन जो है शांति में नहीं जी पाते हैं। And they start blaming all the people around them and all the situations and circumstances and the difficult situations. और वो हमेशा जो है दूसरों के प्रति दोष लगाते रहते हैं और हर एक परिस्थितियों में दूसरे के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं। David was known as a man after God's own heart. और दाऊद जो था वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। Because he tried to praise the Lord for all situations and he wanted to thank Him and praise Him in the temple of God and at all times. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता था परमेश्वर के भवन में। He tried his level best. वो अपना पूरा तरीका से अपने तरफ से पूरा जीवन अपना बेस्ट दिया। Because of that, God was very close to him and blessed him abundantly. और इसलिए परमेश्वर जो थे उनके बहुत करीब थे और परमेश्वर ने बहुतायत से बहुत सारे आशीष दिया। We have so many things to give thanks to God for. और हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। God has made us alive and given us so many good things in this world. और परमेश्वर ने हमें मरे हुए में से जिलाया है और बहुत सारे हमें परमेश्वर ने आशीष भी दिया है। Romans chapter 1. रोमियो के अध्याय 1 में जाएंगे। रोमियो के अध्याय 1 verse 21 says, even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculation and their foolish heart was darkened. वचन 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Verse 22 says, professing to be wise, they became foolish. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। And verse 23, and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and of four-footed animals and crawling creatures. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। So even though everybody, all the people in the world know that there is a living God who is all powerful, they don't give thanks to Him. और बहुत सारे व्यक्तियों को इतना जानकार होता है कि एक परमेश्वर है जो जीवित है और हमें सब कुछ जानता है। And they keep on, the more intelligent they are, the less people, the more intelligent the person is, the less thanks they give to God. और जितना मनुष्य जो है बुद्धिमान हो जाता है इस संसार में, वो परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं दे पाता है। The creatures, God's creatures give thanks to Him when the birds always sing in the morning, and the thanksgiving and praise early in the morning. और सुबह सुबह जब पक्षियां भी परमेश्वर के गीत को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। But the more intelligent we become, we stop giving thanks and start reasoning out whether God is alive and whether He is who He is, and then we start thinking all the wrong things about God. और लेकिन जितना जो है संसार के लोग में बुद्धिमान हो जाते हैं, वो पूरी तरह से परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर देते हैं और बहुत सारी बातें से वो दोष लगाते हैं। That is why so many people go into idolatry also.
इसी कारण से बहुत सारे लोग मूर्ति पूजक में चले गए हैं। And not only physical idols, but also idols of money and the pleasures of this world. They make it an idol for themselves. और ये जो मूर्तियां हैं सिर्फ हाथ के बनाए हुए मूर्तियां नहीं, बल्कि जो हृदय में और जो पैसा है, जो संसार की अभिलाषा है, ये सारी मूर्तियां के समान है। And that's why in verse 28 it says, just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind to do those things which are not proper. और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। See, whenever we fail to acknowledge God and thank Him for all His goodness, then our hearts go into all the evil things of this world and attracted to all the attractions of this world, and when we fall into all sorts of sin. जब कभी भी हमें हमारा जो हृदय है परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो पूरी संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं और संसार के अंधेरापन हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। Their behavior becomes very bad when people stop thanking and praising God. और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो चाल चलन है पूरी तरह से दुष्ट हो जाता है और परमेश्वर को धन्यवाद देना भी हम बंद कर देते हैं। And see what happens when we stop praising God. In verse 29 to that onwards, it says, 29 onwards, being filled with unrighteousness and wickedness and greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, and unmerciful. और जब कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर देते हैं, तभी ये सब जो बुराइयां हैं, दुष्टता है, हमारे जीवन में आ जाती है। वचन 29 से, सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और हत्या, डाह, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले बन गए। And verse 31 also. निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दय हो गए। Yes. So whenever we stop, any human being stops thanking God and praising God, they start going deeper and deeper into all sorts of sins. जब कभी भी मनुष्य जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर देता है, तो और भी गहराई से बुरी दुष्टता हमारे जीवन में आ जाती है। This is true of both all believers as well as unbelievers. और ये बातें बहुत सच है अविश्वासी और विश्वासी दोनों के लिए। When an unbeliever starts thanking God and trying to please God and with his heart, then God reveals himself to them. अगर अविश्वासी अगर जीवित परमेश्वर की फिर आराधना करने लौटता है और धन्यवाद देता है, तो परमेश्वर जो है उसके करीब आ जाते हैं। We know about Sadhu Sundar Singh. He said, Lord, where are you, living God? Please show yourself to me. I want to seek you. आप सब जानते हैं साधु सुंदर सिंह के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने जीवित परमेश्वर को पुकारा, कहा यदि आप जीवित परमेश्वर है तो मुझ पर आप प्रकट हो जाएं। And God revealed himself to him in a dream. और परमेश्वर ने अपने उनके सपनों में प्रकट हो गए। We know about Cornelius. He was a heathen man, but he was so thankful to God and he gave to the poor and he did so many good works because he was thankful to God. आप हम लोग जानते भी हैं कुरनियस के बारे में, किस प्रकार से बहुत ही वो गुप्त रीति से परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, प्रभु के लिए जी रहा था और हमेशा धन्यवादी और बराबर सेवा किया करता था। He was not a Jew. He didn't know the Bible and anything, but he had a fear of God and thanked God. और वो जो था वो प्रभु के दास नहीं था, यहूदी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय था उसके जीवन में और हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता था। That is why God had to tell Peter to go to his house, and Peter was not at all willing to go, but God, the Holy Spirit told him to go to his house and give the gospel. और इसलिए परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस जाओ तुम उनके घर पे, और क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। And then when they were speaking the word of God, suddenly the Holy Spirit came upon them and they started worshiping and praising God. और जब प्रभु का वचन पतरस सुना रहे थे, तभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पे पूरी तरह से भर गए। They had not even taken water baptism. उन्होंने ना तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था। So God is very pleased when we thank him and praise him and acknowledge him.
और परमेश्वर जो है बहुत हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब हम पूरी तरह से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। When we praise God, God comes into our lives and controls everything. और जब प्रभु भी को हम स्तुति धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन का सारी बातों को नियंत्रण में रखता है। That's why the devil doesn't want us to praise God, because he knows that he will be defeated. और शैतान हमेशा यही चाहता है कि हम धन्यवाद ना दें, और क्योंकि वो तो ऑलरेडी हारा हुआ है, इसलिए हमें कभी भी धन्यवाद देना रुकना नहीं चाहिए। He wants us to grumble and complain. वो चाहता है कि हम हमेशा कुरकुराते रहें, लोगों को शिकायत करते रहें, And always gossip and talk all evil about other people and not give thanks. और पीठ पीछे बातें करते रहे हैं, दूसरों के बारे में चुगली करते रहे हैं, और हम धन्यवाद देना बंद कर दें। When we give thanks to God, we are so happy and our heart will be filled with the Holy Spirit. और जब कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और हमेशा स्तुति और गीत निकलती है। When the people of Israel, the early disciples received the Holy Spirit, they saw Jesus going up to heaven and they knew that Jesus Christ was alive. और जब पहली सेंचुरी में, शताब्दी में जो चेले थे, और सब जानते थे कि प्रभु जो है जीवित हो गया है। And they met together and they were thanking God that Jesus is alive and gone to heaven. और साथ में सब इकट्ठा हुआ करते थे, मिलते थे और प्रभु को धन्यवाद देते थे क्योंकि प्रभु जी उठा है। And because of that, they received the Holy Spirit. और इस कारण से ही उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया। They were not depressed and gloomy. वो पूरी तरह से निराश नहीं थे और ना ही वो कोई दुख से चिंता कर रहे थे। We see in the last verse of Luke chapter 24, लुका के अध्याय देखेंगे 24 में, आखिरी अध्याय, last two verses 52 and 53. 52 और 53। 51 also we'll read. और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया, और वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। We can praise God because Jesus Christ is not a dead God. He is alive today in heaven and with us and given us the Holy Spirit. और हम परमेश्वर को आराधना स्तुति दे सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, महान है। In the middle of all the problems and situations of life, in our personal life, in our family life, church life, country's life, we can give thanks to God. और हर एक समस्याओं के बीच में, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो और कोई भी संकट हो, फिर भी उस में भी हमें परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद देते रहना चाहिए। And whenever they were thanking and praising God, then they received more of the power of the Holy Spirit. और जब भी हम इस दुख तकलीफ में प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परिपूर्ण हो जाती है। We may not feel like thanking God, but God will see that Jesus Christ God works out everything for our good. Every situation is for our good. हम सोचेंगे कि ऐसा नहीं लगता है, हम नहीं करें, लेकिन अगर हम करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की सहभागिता को देखेंगे। Even our failures and our falling into sin also can work together for good. और अगर हम पाप में गिर भी जाते हैं या हम समस्याओं से गुजर रहे, वो भी हमें उस पे भी जीवंत होके हम भलाई के लिए हो जाएगा। Because God is going to lift us up and show us how weak we are. और परमेश्वर हमें दिखाएंगे कि हम कितना परमेश्वर के बगैर कितना कमजोर हैं। And then God will fill us with the Holy Spirit, with the power of God, and with more we praise with the power of God, then the sin and the devil and temptations become less and less in our own life. और जब पवित्र आत्मा की आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जितने भी अंधकार, बुराई और पाप है वो हम कम होते जाएंगे। The children of Israel, when they encircled the city of Jericho, they worshipped God and shouted to the Lord and praised the Lord. Then all the impossible became possible. और जब जेरिको का जो दीवार था उस समय उन्होंने 7 चक्कर लगा के और परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दिया और असंभव को भी संभव परमेश्वर करने वाला दिखाए। All of us have got so many personal problems and problems in our families and in our workplace, so many things, and many times in the church and in the country. What we must do is, Lord, I lift your name up. I want to praise you and thank you. You know everything that is good for me, and you're doing everything good for me. So I thank you and praise you, we can say.
हम हर दिन जीवन में बहुत सारे दुख और संकट और सताव से जाते हैं, लोगों के सताव, काम पर अलग अलग जगह से जाते हैं। फिर भी उस परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ना चाहिए। We must always pray to God, but we must always start with thanksgiving and end with thanksgiving and praise. और हमेशा परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद देना चाहिए और कभी भी हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। In all our problems, we can commit it to the Lord, but say, "Thank you, Lord, that you are great and mighty, and you can solve this problem for me, and because I'm your child." और जितने भी समस्याएं और संकट हमारे जीवन में आते हैं वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे और पूरी तरह से हमें उससे छुटकारा देंगे। In Revelation, 1 Thessalonians chapter 5, we read that rejoice evermore and in everything give thanks. और पहला थिस्सलुनीके 5 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि प्रभु यीशु की यही इच्छा है। We'll read that verse. हम वो वचन पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 16, 17, 18. Rejoice 16, always, 17। pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। So this is God's will for you and me, और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, भाइयों बहनों। to give thanks in everything. हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। We feel like murmuring and grumbling and being unhappy in everything, but God says, "I'll give thanks." When we give thanks, we are in the will of God. कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे कुरकुराना, शिकायत करना और हमें धन्यवाद देने का अगर दिल नहीं होता है तो हमें फिर भी उस सिचुएशन में प्रभु के पास आके धन्यवाद देना चाहिए। When the problems come, we feel like grumbling and feel get discouraged, and we start blaming the people and situations and things. और जब कभी भी समस्याएं और ज्यादा ज्यादा आता है तो हम उस समय हमेशा दूसरों के प्रति दोष लगाने, उसके अंदर कमियां ढूंढना, ये सब बातों में हम सोचने लगते हैं बजाय कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। So the Holy Spirit says, "Rejoice always, rejoice in the Lord." पवित्र आत्मा हमसे बता रहा है कि हमेशा सदा आनंदित रहो। When there are problems, we are facing sin and anger and bitterness and all the wrong things, thoughts in our life. Rejoice in the Lord. Lord, thank you, Lord, you've called me to salvation and victory in my life. जब कभी भी हम बहुत सारे कोई करवाहट से या गुस्से से या ऐसे कोई पाप से गुजरते हैं, फिर भी हमें उससे मन फिरा के प्रभु से धन्यवाद देना चाहिए। And pray without ceasing. और हमेशा हमें धन्यवाद देना चाहिए बिना रुके। 24/7, we can always pray. 24 घंटा 7 हफ्ते हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Whether you're traveling in the bus or in the train or walking on the road or sleeping in the night also, pray to God for all your problems. Commit them to the Lord. जब कभी भी आप सफर में होते या बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, घर में है या रास्ते में है या आप सो रहे हैं, उस समय भी परमेश्वर को आप धन्यवाद दे सकते हैं। And rejoice in God. और प्रभु में सदा आनंदित रहें। And after saying prayer, give thanks to God. और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करने बाद प्रभु को धन्यवाद दें। That you are going to work it out according to your will. और आप तब परमेश्वर की इच्छा को उसमें चल रहे हैं। That's how we get victory over sin in our personal lives. और इस प्रकार से हम अपने जो व्यक्तिगत जीवन में हम सारे पापों पे जयवंत हो जाएंगे। For example, if I have a problem with anxiety and dirty thoughts, मान लीजिए कि हमें कोई समस्या हो रही है बुरे विचारों पर, and I'm getting all tension also in my mind. और बहुत सारे हमारे मन में चिंता भी हो रही है। So I just praise God, say, "Lord, I thank you that you are my God. I'm going to rejoice in you. I'm going to be happy because you love me and you are my Father." तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? प्रभु परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सब नियंत्रण रखेंगे, आपकी स्तुति हो। And then we can tell the specific problem, "Lord, I'm getting worried about this thing, and all these dirty thoughts are coming to my mind. Lord, you know everything, Lord. I commit it to you. Please help me. Please save me." और परमेश्वर को आप व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं, परमेश्वर मैं इस सिचुएशन से, परिस्थिति से जा रहा हूँ, आप मुझे इस परिस्थिति में संभालिए। I've got to go for an interview. I have to go for an exam. My boss is so bad. Lord, I commit this matter into your hands. Lord, I thank you, and end always with thanksgiving.
परमेश्वर, मैं ये परीक्षा आ रही है, एग्जाम से जा रहा हूँ, कामों पे मुझे बॉस के द्वारा सताव हो रहा है, और बहुत सारी ये सारी बातों को मैं परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएं। This is what the Holy Spirit is speaking to us. Say, end always your prayer with thanksgiving. और यही पवित्र आत्मा हमसे बता रहा है कि हमेशा प्रार्थना के अंत में प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। You can free me from all my bad habits. और परमेश्वर हमें सारी बुरी आदतों से पूरी तरह से जयवंत कर देंगे। Thanksgiving means that I praise God, that I have faith in God. और धन्यवाद देना मतलब कि परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखना। If I have no faith in God, I will not give thanks. और अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो हम धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे। There are many people who keep on praying, but they don't give thanks. बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। Even in our meetings also, when we start tell everybody give thanks to God, they start praying. और हम सभा में भी अगर हम बोलते हैं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, तो सब मोस्टली ज्यादातर लोग प्रार्थना ही करते हैं। That's why God doesn't answer their prayers at all. और इस कारण से ही परमेश्वर जो है प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं दे पाते। They don't learn to rejoice in God. They don't thank Him and praise Him. और वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं और ना ही स्तुति करते हैं। Many times we pray for all our earthly things and for our selfish needs. और ज्यादातर जो है हम संसारिक चीजों के लिए और अपने खुद के स्वार्थी जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। When we surrender our life to the Lord and say, Lord, let your will be done in my life, then we will start praising God. और जब हम अपना जीवन परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर हमें संभालेंगे। And God sends all sorts of people across our way, all sorts of situations. For that also we can thank and praise the Lord. और हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। As it says, in everything give thanks. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हर समय निरंतर प्रार्थना में करते रहो। As we grow in our Christian life, we learn to give thanks in everything. और इसलिए हम जैसे ही मसीह जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, हर बात में प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। We also thank God for the people who are harassing us, who are bad to us. और हमें परमेश्वर को इस धन्यवाद देना है जो हमें सताते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं। With all the problems, so then we find that God begins to answer our prayer, and we become happy and joyful in every situation. और फिर हम परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर को देख पाएंगे और प्रभु के आनंद में आनंद रहेंगे। And we will see that God's will is being done. और फिर हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हो जाएगा। Not my will. I don't want my will to be done. Let God's will be done in His time. He will do everything nicely. मेरी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो जाएगा और पूरी अच्छी तरीका से हो जाएगा। In 2 Timothy chapter 2 verse 1, chapter 2. दूसरा तिमुथी अध्याय 2। Sorry, 1 Timothy chapter 2. पहला तिमुथी चैप्टर 2 अध्याय 2 verse 1. वचन 1। First of all, I urge that entreaties and prayers and petitions and thanksgivings be made on behalf of all men. अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ, विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। So for all people who come across our life, we can give thank God. और जो भी हमारे जीवन में जब हम चलते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है, सबके लिए हमें धन्यवादी बने रहना चाहिए। Whether they are good or they are bad. चाहे वो दुष्ट हो या धर्मी हो। Because God has allowed them to come across our life. परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में उनको आने देते हैं। And God is going to do a work in our life and their life also. और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में भी और उनके जीवन में भी कार्य करने वाले हैं। Because God desires everybody to be saved. परमेश्वर ही निर्णय लेते हैं और चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो। Verse 4 says, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. वचन 4, परमेश्वर यह चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। That includes everybody in our family. सॉरी बदन। That includes everybody in our family. और ये जो है हमारे परिवार जो है वो भी शामिल है। And also all those who are working with us.
और वो सारे जो हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, and our neighbors and our friends, हमारे परिवार, हमारा जो पड़ोसी है, हमारे जो दोस्त हैं, and our relatives, और हमारे संबंधी जो रिश्तेदार हैं, we can thank God for them. Say, God, you want all of them to be saved. I must be good to them. और हमें परमेश्वर को उस सब बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए और परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। Because we must not talk badly to anybody. हमें कभी भी दूसरे के प्रति बुरा नहीं बोलना है, Because we want them to be saved. क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी उद्धार हो, We want all believers of the church also to be more and more saved. और हम चाहते हैं कि हर एक कलीसिया भी ज्यादा परमेश्वर उनका बच जाए उद्धार उससे। All of us require to have more and more victory over every type of bad habit and sin that is there in our life. और हमें हर पापों पे हमारा जयवंत होना है जो हमारे जीवन में हमें दिखाते हैं। So when we acknowledge God and thank Him and praise Him, we have faith in God, and then God does a miracle in our life. जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल कर लेते हैं, तो परमेश्वर पे हम विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालते हैं। So it is the power of God that is increasingly work in our lives. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में पूरी तरह से कंट्रोल नियंत्रण रखती है। So dear brothers, let us always give thanks to God. और इसलिए भाइयों बहनों आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, Because God is good क्योंकि परमेश्वर भला है and He always wants to do good for us. और परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भलाई की चेष्टा रखते हैं। And already He has done so much good for me and you. परमेश्वर ने पूरी तरह से हमें बहुत सारे ही आशीष और दिया है हमारे जीवन में। We can praise Him because God is great and mighty and powerful. और परमेश्वर को हम स्तुति धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर महासामर्थी अद्भुत परमेश्वर है। He's not a dead God, He's a living God, and He's hearing our prayers. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ना कि मृत्यु। And He has prepared heaven for us. परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है। And He's so holy and great and powerful, that's why we can worship Him and say, Lord, you're mighty, you're great, glorious, I bow down before you. परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के सिंहासन अद्भुत है और हमें उनके सामने हमेशा उनके अधीन में परमेश्वर को रहना है। And the devil knows that when we do these things, we'll have victory over our sins and power over him. That's why he doesn't want us to thank and praise God. और शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद न दें और हमें बहुत सारी बातों में वो फंसा के रखता है। And that is why we get defeated all the time and depressed and gloomy. और इसी कारण से हम बहुत सारे पापों से और बहुत सारी बातों से हार जाते हैं और फिर हम निराश बैठ जाते हैं। So dear brothers and sisters, don't forget to give thanks and praise to God every day. और इसलिए भाई बहनों परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी भी ना भूलें। All the time give thanks. हर परिस्थिति हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। For all our problems, situations in life, for our future, give thanks to God. हमारी सारी समस्या, आने वाले भविष्य, आने वाला जीवन, सब बातों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। He is the one who can give me and you the strength every day and to go on from day to day. परमेश्वर ही है जो आपको और मुझे पूरी तरह से सामर्थ और बल देगा हर दिन जीवन में चलने के लिए। And we start thanking and praising the Lord, we start blessing Him, and our lives will be filled with praises and thanksgiving more and more. और फिर हम परमेश्वर को पूरी तरह से हम दिल से भर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हर परिस्थिति में हर एक लोगों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। Not be wanting to do our will, but to do God's will in every situation. और हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा। So, dear brothers and sisters, let us do these things. It is one of the most important things in our life. और इसलिए भाइयों बहनों हमें ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो हमेशा हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। If anything is preventing you from thanking and praising the Lord, it is only sin. और अगर आपको कोई भी बातें परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करने के लिए रोक रहा है तो वो पाप है। So you just confess your sin to God and forsake it and turn it away and thank God. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। And then when we repent, we find God will fill us with the Holy Spirit and fill us with thanksgiving and praise. और जब हम पूरी तरह से पापों से मन फिरा लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में जगह लेगा और पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण रखेगा। Our lives will be joyful more and more. और हमारा जीवन जो है पूरी तरह से आनंद और खुशियों से भरा रहेगा। Amen. आमीन। So
Here, Brother Ratnaswamy share, and if everybody else can share one by one. Translation. I thank God for today's encouraging Little words. louder, brother. I You can thank put your God. videos also on and share. In the light button. Little loudly, yeah. Yeah. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। Giving thanks is most important in our Christian life. और परमेश्वर को धन्यवाद देना मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, Because it is the commandment of God. क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। As brother shared, thanks word is coming so many times in the Bible. जैसे भाई ने बताया कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। So, please read brother Job chapter 1 verse 20 to 22. और आयुब के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे 22 से 20 से 22. तब आयुब उठा और भागा फारा, फिर सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। Yes. When in our life, when everything goes very well, it is very easy to give thanks. और जब हमारे जीवन में सब बातें अच्छी चलती रहती है या सही थी ढंग से होता रहता है तो बहुत आसान हो जाता है प्रभु को धन्यवाद देना। Real thanksgiving comes when we are in very difficult situation. और सच्चा धन्यवाद तब आता है जब हम बहुत ही दुख और संकट और परीक्षाओं से जाते हैं। You see how Job thanked God when he lost everything. और हम देखते हैं किस प्रकार से आयुब जो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दे रहा है, इवन उसके जीवन में कितने सारे बातें हैं, सब बात और बहुत सारा चीजें हैं जो खो दिया। He did not even criticize God even single word to sin. और आयुब ने परमेश्वर पर कुछ भी ऐसी कोई भी बातें हैं परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। In our life, we are when we go through small difficulties, or when we go to so many interviews not getting jobs, when we are in money problems, we are immediately murmuring and criticizing, where is our God? I am praying every day, I am going to church every day, listening God's word every day, but God is not answering my prayer. We are criticizing in our heart. और हमारे जीवन में भी हम जब बहुत सारी परीक्षाओं से, जैसे हमें इंटरव्यू देना है या काम नहीं मिल रहा है या हम बहुत सारी परीक्षाओं से जाते हैं और हर एक बातों में हम परमेश्वर को दोष लगाने चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आते हैं और उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम परमेश्वर की ओर दोष लगाने लगते हैं। Immediately we criticizing our God in our heart. और हमारे हृदय में तुरंत ही हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। That is sin, my dear brothers and sisters. और ये पाप है भाइयों बहनों। First thing is not giving thanks is sin, and not giving thanks and criticizing God is double sin. और सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर को जब धन्यवाद नहीं देते हैं, ये पहला पाप हो गया। और जब हम परमेश्वर के प्रति दोष लगाते हैं तो उससे भी बड़ा पाप हो जाता है। Please remember, my dear brothers and sisters. और ये इस बात को याद रखे भाई बहनों। Brother shared that so many even birds are starting their days with thanksgiving. और जैसे भाई ने भी बताया कि जो हम इवन बुरा परिस्थिति भी रहता है फिर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। Birds, बच्चियां, birds. और बच्चियां, सॉरी पक्षियां। early morning you sound, hearing the birds sound.
और हम सुबह सुबह भी प्रातः काल में देखते हैं किस प्रकार से चिड़िया भी है गीतों को गाती है। Yes, they are starting with their days with giving thanks to God. और उनका जो दिन का शुरुआत होता है हमेशा धन्यवाद और परमेश्वर को स्तुति देते हैं। One godly man said that uh, to giving thanks, not even a single things in our life to giving thanks. और एक भाई ने बताना था कि परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे जीवन में हर एक छोटी छोटी बात भी नहीं है। No, not even a single thing to say thanks to God. और हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके द्वारा हम धन्यवाद नहीं दे सकते, हर बात में दे सकते हैं। We have so many things to thank God, my dear brothers and sisters. और बहुत सारी बातें हैं भाइयों बहनों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवादी बने रह सकते हैं। We are alive today. आज हम जिंदा हैं। We have had food today. आज हमने खाना भी खाया है God has given good health. और परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। So many. If you start to give thanks, there is no time to criticize anything else. और बहुत सारे बातें हैं भाई बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना जब शुरू कर देंगे तो हम कभी भी परमेश्वर को कोई भी बातों के लिए हम दोष नहीं लगाएंगे। Colossians chapter 3 verse 17. Read, brother. कुलुसियों के अध्याय 3 में हम 17 पढ़ेंगे। कुलुसियों के अध्याय 3 में 17 वचन कहता है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का हमेशा धन्यवाद करो। Yes. And 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. और पहला थिस्सलुनीको अध्याय 15 में वचन 18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। As brother shared, this is the will of God. और जैसे भाई ने शेयर किया कि यही परमेश्वर की इच्छा है। And Ephesians 5:20. इफिसियों के अध्याय 5 में 20, इफिसियों के अध्याय 5 में 20 पढ़ेंगे। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Yes, करते रहो. Yes, go on doing thanks. Giving और thanks. यहाँ बताता है हमेशा करते रहो। So, my dear brothers and sisters, we will start today onwards. Give thanks always for everything and everybody and every situation in our life. Then God will definitely bless us. Amen. इसलिए भाई बहनों अभी से ही हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे और परमेश्वर निश्चित तौर से हमें पूरी तरह से आशीष और परिपूर्ण करेगा। आमीन। आमीन। Anybody else want to share? और किसी को शेयर करना है? 5-6 मिनिट है, 2 ब्रदर्स को प्रेज द लॉर्ड बोला। प्रेज द लॉर्ड, प्रभूला स्तुती आहे, धन्यवाद देतो। आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचे खरोखर आभार मानतो, कारण प्रभूला धन्यवाद देणे हे खरोखर महान आहे। कारण हिंदी में बोलो ब्रदर। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे तरफ देखना, जब हम अंधे थे, एक शास्त्र में देखा अंधा बर्तनमय, जो अंधा बर्तनमय था उसी तरह हम भी अंधा था। लेकिन बर्तनमय को क्या चाहता? दृष्टि चाहता। दृष्टि के लिए वो ओरड रहा था, दृष्टि के लिए वो अपना कुछ भी देख नहीं रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु को वो दृष्टि मांगा था। प्रभु ने उसके दृष्टि दिया, फिर भी उसको दृष्टि देने के बाद वो कितना चिल्लाया, कितना स्तुति किया। आज हम भी ऐसे अंध लोग था, हम प्रभु ने आप हमारे पर दया किया है। अब एक वचन है, लूका सुवर्तमान
लोक शुभवर्तमान 7वा अध्याय 41 पासून 43 पर्यंत. एका सावकाराचे 2 कर्जदार होते. एकाला 500 रुपये देणे होते व दुसऱ्याला 50. परंतु कर्ज फेडायला त्यांच्याजवळ काही नव्हते. म्हणून त्याने त्या दोघास सोडले. तर त्यापैकी कोणता त्याच्यावर अधिक प्रीती करेल? तेव्हा शिमोनाने उत्तर देऊन म्हटले, ज्याला अधिक सोडले तो, असे मला वाटते. मग तो त्याला म्हणाला, ठीक ठीक करवलेस. आज खरोखर आम्ही उपकारस्तुती करायचे काय कारण आहे? तर आज आम्हाला आमचं कर्ज किती होतं? 50,000 आम्हाला सोडले नाही. म्हणून आम्ही किती उपकारस्तुती केली पाहिजे, किती प्रभूला धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम कर्जदार था, प्रभु ने हम पर दया किया है. इसलिए हमेशा के लिए, प्रत्येक दिन के लिए, प्रत्येक क्षण में प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहिए. प्रभु को स्तुति. आमेन. Amen. और कोई है? प्रभु की तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। ये हर दिन वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमें सिखाते हैं। जैसे कि ब्रदर ने कहा, हम लोग प्रार्थना तो निरंतर करते हैं, पर धन्यवाद देने के लिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। हमारे मुंह से धन्यवाद कम ही निकलता है, जो कि बहुत जरूरी है, हमें सीखने को मिला है। तो हमें भी निरंतर धन्यवाद देना नहीं भूलना है। तो एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं। जैसे कि नूह के दिनों में जैसे जल प्रलय हुआ था, उसके बाद में जो सारे लोग बचाए गए थे, उसके बाद में नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बना के जो बलि, होम बलि करके चढ़ाया था। मैं उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 20 से पढ़ रहा हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। 21 में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो परमेश्वर यहोवा ने भी तो ये प्रतिज्ञा किया है कि जैसे नूह ने जो वेदी पर जो होम बलि करके चढ़ाया था, उसका जो सुगंध जो है वो परमेश्वर तक पहुंचा है। तो वैसे ही हम भी जो है हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है कि हमारा हर धन्यवाद परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, और हमारा भी जो है परमेश्वर तभी जाके हमारे लिए तो द्वार खोलते हैं, हमारे लिए प्रभु आशीष को हमारे लिए देते हैं। तो इसी तरह से हर परिस्थिति में हम लोग जो है धन्यवाद तो हमें निरंतर करना है। जैसे पुराने नियम में बहुत सारा बलि विधान हुआ करता था, जैसे कि होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, वैसे आज तो प्रभु ने सब कुछ कर दिया, फिर भी हमें धन्यवाद का बलि जो है निरंतर चढ़ाना है, धन्यवाद का भेटी को। तो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमेशा प्रोत्साहन देते हैं मुझे कि जब भी दुख तकलीफ और परीक्षाओं से जाता हूँ तो परमेश्वर हमें आत्मिक तौर पे और भी मजबूत रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर इसलिए डालते हैं क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और क्योंकि उन्होंने ही हमें रचा है और हम पुराने जीवन के लिए मर गए हैं और प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया है। तो वो प्रभु यीशु में स्वरूप में बनाने के लिए बहुत सारे परिस्थिति में, संकट में, लोगों के बीच में मुझे डालते हैं, और हमारे अंदर वो धीरज और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का फल है वो देखते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। और उस सिचुएशन में हमें पवित्र आत्मा आवाज देता है कि तुम्हें इस सिचुएशन में नम्र रहना है, और कभी भी हमारे अंदर प्राइड या घमंड नहीं आना चाहिए। तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें सिखाते हैं। तो आज भी मैं जब ऑफिस में था
तो एक भाई, एक सर का सीनियर थे, उनका बर्थडे था। तो लोग उनके बारे में बहुत सारी सब बातें कर रहे थे, लेकिन मैं एक जगह कोने में कहीं खड़ा था और परमेश्वर को मैं सोच रहा था कि प्रभु वो इस प्रकार से दुनिया में ऐसा महान है, लेकिन परमेश्वर उसे अनुग्रह दे कि वो भी एक दिन आपको जाने। क्योंकि संसार में लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ाई और प्रशंसा होती है, लेकिन एक्चुअली वो लोग उसी प्रकार से हमें जब हम पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे तो परमेश्वर में देखेंगे कि ये परिस्थिति में कैसे रहता है। जैसे जोसेफ था, तो जोसेफ जो था कितना दुख संकट से भी गया, भाई ने भी उसे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का साथ छोड़ा नहीं और प्रभु का भय मानना नहीं छोड़ा, और वो चलते गया और परमेश्वर ने उनके उनके द्वारा आशीष किया, और प्रभु यीशु मसीह उनके लाइन से ही आए हुए हैं। तो प्रभु ने वचन में बात किया, कुलुसियों 2 में लिखा है, 6 में पढ़ूंगा। और सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो, साथ उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए भी गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, अत्यंत धन्यवादी करते रहो। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ वचनों के द्वारा। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देते हैं, और हमेशा कई बार मैं ऑफिस में रहता हूँ तो कोई वगैरह मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिस काम को अच्छी तरीका से भी करते हैं, तो परमेश्वर भी मुझे उस सिचुएशन में बताते हैं कि उनसे सीखो, नम्र रहो, अपने ज्यादा भी अपने आप में बड़ा मत सोचो कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। तो परमेश्वर सिचुएशन में हमें बहुत नम्र कहते हैं, जैसे प्रभु ने भी कहा है कि अनलेस यू नॉट बिकम अ लाइक चाइल्ड यू विल नॉट बिकम अ किंगडम ऑफ हेवन। मतलब परमेश्वर, जब तक तुम बच्चे के समान नहीं बनोगे परमेश्वर के राज में तुम महान नहीं कहलाओगे। तो प्रभु परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देते, हमेशा नम्र रहो, क्योंकि प्रभु गॉड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्ट, एंड परमेश्वर नम्र लोग के टूटे हुए हृदय के करीब रहते हैं, और हमेशा सताने वाले के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे दिल देते हैं। क्योंकि मैं जब से मसीह में आया हूँ, हर जितना मसीह में सताव है, और मैं मसीह में मैं आत्मा में बढ़ते जाता हूँ, और धन्यवाद देते रहता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। तो प्रभु के धन्यवाद हो कि हमको हमेशा धन्यवाद के साथ हर चीज में डालना, क्योंकि प्रभु को हम अपनाते हैं। तो लास्ट वर्स आई कैन से इन Hebrews chapter 13 verse 15, बहुत अच्छा है। इब्रानी का 13 और 15 पढ़िए ब्रदर दिस राजू। Through him let us continuously offer up, Hebrews 13 verse 15, through him let us continuously offer up sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इब्राहिम का 13-15। एक्चुअली माइक वाज ऑफ, सॉरी। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान और अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। So through Jesus Christ, through my Lord Jesus Christ, we can continuously offer up a sacrifice of praise. और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पूरी तरह से लगातार परमेश्वर के ऊपर हम बलिदान दे सकते हैं। Earlier, continuously we were cursing and grumbling and murmuring. और हम पहले जीवन में पूरी तरह से लोग कुरकुराते थे और बहुत सारी बातों, निराशा और लोग दोष लगाते थे। So when the problems of life came, we were cursing everybody and grumbling and blaming everybody. और जब जीवन में समस्याएं आने लगी तो हम फिर लोगों के अंदर कमियां निकालने लगे, उनको दोष लगाने लगे। But now will come the sacrifice. We don't feel like praising God, but we praise God. लेकिन अब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है। So we may not feel like praising God because situations are difficult. और हम ऐसा कभी लगेगा नहीं कि हम धन्यवाद दें, क्योंकि परिस्थितियों के कारण। Otherwise, it's not a sacrifice of praise. और इसलिए यहाँ पे कहा कि धन्यवाद की बलिदान चढ़ाओ। And that is what from the lips, our lips, each one of our lips, thanksgiving should come to God. और वो हमारे होठों के द्वारा परमेश्वर से को धन्यवाद देना आना चाहिए। Open our mouths and give thanks. हमारे अपने मुंह को खोलना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। And the time starts now.
और समय शुरुआत होता है अब से। Right from now, say, thank you, Lord, for everything. And when you go to sleep, also give thanks to God. अभी से ही परमेश्वर को धन्यवाद दे दें। जैसे आप आज सोने जाएंगे तो आपको धन्यवाद देते धन्यवाद देना चाहिए। I said, Lord, make this a habit in my life to give thanks to you. और परमेश्वर से कहना चाहिए, परमेश्वर ये मेरे जीवन की दिन चर्चा हो जाए हर दिन के लिए। Whatever happens, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, because you are great and you are King of Kings and Lord of Lords, you are the same yesterday, today, and forever. परमेश्वर आप महान है, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, कल आज और युगानुयुग आप सेम हैं।